So today's topic is refraction, proving the laws of refraction using Huygens wave theory. In the last class we have done reflection, verifying the laws of reflection by using Huygens wave theory. Today we will take up refraction. Now let us just to begin with, let us recall what was refraction. Refraction is basically a phenomena of change of speed of light whenever light travels from one medium to another. Whenever it travels from one medium to another, its speed changes. Speed of the light is maximum in vacuum, and whenever it travels into any medium, its speed always decreases. Maximum in vacuum, and it is always less in the medium, any medium. And every other medium through which the light would travel will travel with a different speed. So here we have two different types of medium. We call one of them as rarer medium, another as denser medium. So these words are nothing to do with the density of the substance, of the medium, that which is having more mass per unit volume or which is having less mass per unit volume. Having less mass per unit volume is rarer and having more mass per unit volume is denser is not applicable here. That is called as mass density. Here we are talking about optical density. These two terms refer to the optical density. Rarer means where the speed of light is higher. Higher speed. Speed of light is higher. Denser means the speed of light is lower. So it will be a comparative term. Two mediums will be compared on the basis of whether which is rarer, which is denser, on the basis of which medium carries the light with a higher speed, which allows the light to travel with a lower speed. So one of them is denser, another is rarer. So whenever light goes from one medium to another medium also, there is a change in the speed of light. Right? So that phenomena of change of speed of light is called as refraction. And this change of speed of light produces one more consequence. The effect of that is that light appears to bend. It deviates. It seems like it has deviated from its direction. So during refraction of light, with the help of wave theory, we will understand how the light undergoes a deviation when it travels from one medium to another. And there we will be proving the law of refraction, which is also known as Snell's law. Right? So let us again choose. This is a surface S dash. S dash is a refracting surface. It is a refracting surface. Means it is separating two different medium. This is medium 1. Let us say this is medium 2. It is separating two medium. And one of the medium through which the light travels, the speed of light is C1, and this medium, the speed of light is C2. Let us assume C2 is less than C1. That means medium 2 is denser, medium 1 is rarer. It can be other way around also. Now you define a term called as refractive index. What is refractive index? So refractive index of medium 1, mu 1, first medium. This is speed of light in vacuum to the speed of light in the medium. Right? Mu 1, if it is refractive index of first medium, that means mu 1 is C0 upon C1. Similarly, refractive index of second medium is suppose mu 2. This medium has a refractive index is mu 2. This is refractive index of first medium. Then this mu 2 is C0 upon C2, where C0 is the speed of light in vacuum. Okay. So then we define relative refractive index. Relative refractive index of say second medium with respect to first medium.
It is mu2 upon mu1. Sometimes it is also denoted like mu2 1. So it stands for mu2 upon mu1. Okay. So it is, what is mu2? It was C0 upon C2. To be divided by mu1 means to be multiplied by C1 upon C0. So it is C1 upon C2. Right. So this actually is an important result for us. While we will be deriving the Snell's law, we will be proving the Snell's law, verifying the Snell's law. Mu2 upon mu1, it is relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1, which is actually the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. Ulta ho jata hai. Where refractive index is more, speed will be less. Okay, so this is just an idea about what was refractive index. In refraction, this is an important term to be understood. Now, let's say there is a wavefront which is incident on the surface. Draw the figure in this manner. The way I am drawing it. AB is an incident wavefront traveling through medium 1. In the medium 1, the wave is approaching the surface SS dash. AB is a incident wavefront. So these are the rays of light, incident rays. A is one of the point of incidences. So at point A, let me draw a normal N dash. This is the normal I have drawn at point A. Now as we know, wavefront and a ray, they are mutually perpendicular. So AB and this ray is perpendicular. That means this entire angle is 90. Right? And angle between normal and incident ray, that is this angle, is called as angle of incidence. This is the angle of incidence. Now if this is angle of incidence, what about this angle? Itna sa angle jo dikh raha hai. This must be 90 minus I. And last class also I told you, if this is normal, that means this entire angle is 90. This angle is 90 minus I. Means this angle is therefore also I. Same angle between incident wavefront and the refracting surface. Last time it was reflecting surface, this time it is refracting surface. So angle between incident wavefront and the refracting surface is also angle of incidence. So this is the situation we are having. AB is a wavefront, plane wavefront. AB is a incident plane wavefront. Let us mention. Plane wavefront, we are proving it. For plane wavefront we are doing it. So AB is a plane wavefront falling upon and it is incident on the surface at an angle of incidence I. Right? Now what happens when this wavefront is incident on the surface SS dash? We will take up this presence of surface SS dash later on, but let us initially assume if this surface SS dash was not there in the path. ये रास्ते में नहीं आया होता तो मतलब क्या होता फिर? ये मीडियम 1 है, मतलब ये मीडियम 1 ही चलता रहता. ये वेवफ्रंट ऐसे मीडियम 1 पे से आकर सरफेस पे पड़ने वाली है, आगे मीडियम 2 है, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि सरफेस एसएस डैश नहीं है रास्ते में. इसका मतलब ये वेवफ्रंट मीडियम 1 में जो चल रहा है ये C1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये आगे भी चलता ही चला गया और आगे भी मीडियम 1 ही था, कहीं मीडियम चेंज ही नहीं हुआ. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अप द सिचुएशन in the absence of the surface SS dash, that is the wavefront continues to travel in the first medium
इन द फर्स्ट मीडियम विद स्पीड c1, उसी मीडियम से मीडियम में चलता चला जाता है। तो अब देखिए, अगर ये मीडियम चेंज नहीं हुआ, ये लगातार मीडियम 1 ही चल रहा है, तो ये वेवफ्रंट, अगला वेवफ्रंट कैसे बना था? हाँ, मैंने एक पॉइंट सपोज मार्क किया, ये पॉइंट बी डैश है, तो ये पॉइंट मार्क कर रहा हूं ए डैश, राइट। बी से बी डैश की दूरी, ए से ए डैश की दूरी बराबर मैं बना रहा हूं, डायग्राम में ऐसे बना रहा हूं, लेकिन अभी हम समझने के लिए करते हैं कि मान लीजिए मैं पॉइंट बी को एक सेंटर मान लूं, एंड यहां से मैं एक सोचूं कि एक सेकेंडरी वेव जनरेट हो रही है, बढ़ रही है, उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ता बढ़ता कितना हो गया, बी बी डैश के इक्वल हो गया। तो एक इतना बड़ा स्फीयर सोचिए बन रहा है जिसका रेडियस बी बी डैश हो चुका है। तो जितना रेडियस बी बी डैश है कितना होगा, अगर c1 स्पीड ऑफ लाइट है, b से b डैश तक इस वेवफ्रंट को ग्रो करने में, ऐसा बड़ा होने में मान लीजिए t टाइम लगा था, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, c1 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो इतने समय में t सेकेंड्स में जब वेवफ्रंट b से b डैश पहुंचा, तो पॉइंट a से जो वेवफ्रंट ग्रो कर रहा होगा, यहां से भी एक वेवफ्रंट निकल रहा है, बढ़ रहा है, और क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ, दैट मींस यहां का वेवफ्रंट भी उसी स्पीड c1 से चल रहा है। तो उतने ही समय में यहां का वेवफ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट बढ़ते a डैश पे पहुंचा, मतलब ये देखिए वो वेवलेट बन गया। तो A से A डैश तक का जो डिस्टेंस है वो भी एग्जैक्टली इक्वल टू c1t ही होना चाहिए, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ द सरफेस SS डैश, दैट इज द वेवफ्रंट कंटिन्यूज टू ट्रैवल इन द फर्स्ट मीडियम विद स्पीड c1, देन क्या हुआ, व्हेन अ सेकेंडरी वेव reaches secondary wave from B reaches reaches to B dash in time t, ठीक है। then distance traveled कितना होगा, b डैश इज इक्वल्स टू c1t। b से b डैश तक जो वेव, सेकेंडरी वेवलेट ट्रैवल हुई, उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, c1t। देन इन द सेम टाइम a secondary wave also travels a distance c1t from A to A dash, that is A dash is also c1t, ठीक है। तो a tangential surface, then a tangential surface जो यहां तक की सेकेंडरी वेव थी, यहां की जो सेकेंडरी वेव थी, इन दोनों पे मैंने टेंजेंट सरफेस बना दिया। देन द टेंजेंशियल सरफेस कौन सा है, ए डैश बी डैश शुड बी द न्यू वेवफ्रंट आफ्टर टाइम टी के बाद ये नया वेवफ्रंट बन जाना चाहिए था, ऐसा बन जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। ये तब की बात हमने लिखी, ये सारी कहानी तब की है कि जब ये मीडियम SS डैश सरफेस ना होता और ये पूरा मीडियम 1 ही होता, तो ऐसा वेवफ्रंट, ये प्लेन वेवफ्रंट था, बिल्कुल इसके पैरेलल चलता हुआ एक नया प्लेन वेवफ्रंट A डैश B डैश बन जाता। ये ऐसा तब होता जब मीडियम चेंज नहीं होता, लेकिन हमारे प्रॉब्लम में मीडियम चेंज हुआ है। तो लेट अस नाउ डिस्कस कि अगर सरफेस SS डैश होता तो क्या होता, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेस SS डैश की बात करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेस SS डैश,
but in the presence of surface S dash सब सरफेस है, मतलब एस डैश के ऊपर जो दिख रहा है मीडियम वो मीडियम 1 है, उसके बिलो जो मीडियम दिख रहा है वो मीडियम 2 है, जहां स्पीड चेंज होकर C2 हो गई है और वो स्पीड C2 जो है C1 से कम है। अब ऐसा हुआ व्हेन सेकेंडरी वेव फ्रॉम B reaches B dash traveling a distance B dash is equals to C1t। जब ये सेकेंडरी वेव B से चलकर B dash पहुंची ही थी, अब जो पॉइंट B dash पे सेकेंडरी वेव पहुंच चुकी है, उसके आगे उस सेकेंडरी वेव को दूसरे मीडियम में जाना है। अब आप उस पॉइंट से सोचो वहां खत्म हो गई, वहां से एक अगली सेकेंडरी वेव शुरू हुई, वो सेकेंडरी वेव को आप दूसरे मीडियम में कितने स्पीड से जाना है, C2 स्पीड से जाना है। अभी वो चली ही नहीं है, वो स्पीड मतलब वो चलना शुरू ही हुई थी अभी, तो वो डॉट है ये, वो जो सेकेंडरी वेव है उसकी डायमीटर को हम कितना कह रहे हैं, 0 डायमीटर है। लेकिन उसी वक्त पॉइंट ए से सेकेंडरी वेव कहां पहुंची है, डेफिनेटली अब वो ए डैश तक तो नहीं पहुंची है, क्योंकि ए से ए डैश तक सेकेंडरी वेव तक पहुंची थी जब मीडियम 2 नहीं था, पूरा मीडियम 1 था, जब स्पीड C1 ही थी सब जगह। तो जब ए से सेकेंडरी वेव ने बढ़ना शुरू किया, ये यहां से चलते चलते बढ़ते बढ़ते C1 स्पीड से पहुंची कहां, B डैश पर। उसी समय पॉइंट ए से भी एक सेकेंडरी वेव ने चलना शुरू किया था। ऊपर के हिस्से में तो वो C1 स्पीड से जा रही होगी, लेकिन नीचे वाले हिस्से में जो सेकेंडरी वेव चल रहा था, बढ़ रहा था, वो तो C1 स्पीड से नहीं चल रहा था। तो बाय द टाइम B से सेकेंडरी वेव B डैश पहुंचा होगा, A से सेकेंडरी वेव मीडियम 2 में जा रहा है, तो उसने उसी समय t सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, C2t। तो ये बात मेंशन करते हैं, ठीक है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ द सरफेस SS डैश, व्हेन सेकेंडरी वेव फ्रॉम B reaches B dash traveling a distance BB dash is equals to C1t, the secondary wave from A travels a distance of C2t in time t। उसी टाइम t में पॉइंट A से जो सेकेंडरी वेव दूसरे मीडियम में, सेकेंड मीडियम में गई है, इन टाइम t इन मीडियम 2, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया C2t। डेफिनेटली ये C2t C1t से कम होना चाहिए, क्योंकि C2 इज लेस देन C1। तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि अब हमें अगला वेवफ्रंट कैसा बनेगा ये बनाना है, तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसको हम हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे करेंगे कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे करना है आपको, क्या कंस्ट्रक्शन करना है। विथ A एज सेंटर, A एज सेंटर मान लीजिए, पॉइंट A एज सेंटर, ठीक है, एंड डिस्टेंस एंड ए रेडियस इक्वल टू C2t। ये लंबाई लेकर, एक रेडियस लेकर आपको एक स्फीयर बनाना है विथ A एज सेंटर एंड ए रेडियस C2t। क्यों, हमें मालूम है कि इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट C2 है, t सेकेंड्स यहां से यहां तक पहुंचने में लगा, तो जैसे ये डिस्टेंस C1t है, ऐसे कोई एक डिस्टेंस C2t भी है। हमें वो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ऐसे नहीं कह रहे, सम डिस्टेंस, C2t इज सम डिस्टेंस। हमने एक को सेंटर मान लिया और एक अपना कंपास लेना है, जिसमें कंपास को कितना इंक्रीज करना है, C2t, ठीक है। C2t लेंथ लेकर पॉइंट A को सेंटर मानते हुए एक स्फीयर बनाना है, ऐसा एक स्फीयर बनाते हैं, ठीक है। एंड रेडियस C2t, draw a sphere।
इसको इसको सेंटर मानते हुए देखिए यहां तक मैं एक लेंथ लिखा, यहां से यहां तक लेंथ कितनी थी, इक्वल टू बी बी डैश C1 t थी। यहां से मैं एक पॉइंट ये मार्क कर रहा हूं, ये डिस्टेंस जो कि ए डैश से कम है, ये डिस्टेंस मान लीजिए C2t है। अब मैं इतना लेंथ लेता हुआ एक स्फीयर बना देता हूं, ऐसा, आई थिंक समथिंग ऐसा होगा, ठीक है। ये स्फीयर बनाया है, ए को सेंटर मानते हुए एक स्फीयर बना रहा हूं जिसका रेडियस है C2t, ठीक है। ड्रॉ ए स्फीयर एंड ड्रॉ अ tangent on it through point B dash, क्योंकि ये B का सेकेंडरी वेव तो B डैश पहुंचा है, पॉइंट A का सेकेंडरी वेव ये बन चुका है। तो हम क्या करें, यहां से लेकर इस सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा कुछ, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। लेट अस से ये टेंजेंट इस स्फीयर को, ऐसा मैं स्फीयर पूरा बना देता हूं, ऐसा यहां कहीं टच कर रहा है। लेट अस मार्क दैट पॉइंट एज C, ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन इट थ्रू पॉइंट B डैश एज B डैश C, वो टेंजेंट हमने जो बनाया वो है B डैश C, ठीक है। ज्वाइन A एंड C, ज्वाइन AC, AC को ज्वाइन कर दिए। तो AC is the radius of the secondary wave equals to C2t, ये वो रेडियस है, ठीक है, रेडियस है। एंड वो B डैश C के टेंजेंट के साथ कनेक्टेड है, इट मीन एंगल ACB डैश मस्ट बी 90 डिग्रीज, ये एंगल 90 होना चाहिए। टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्रीज होना चाहिए। तो ये जो टेंजेंट हमने बनाया ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस टेंजेंट? अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव थ्योरी, a tangential surface you draw on all the secondary wavelets is the new wavefront, है ना। Therefore, according to Huygens theory, Huygens की theory ये कहती है B dash C is the refracted wavefront, ये refracted wavefront है। B dash C is the refracted wavefront। तो अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो वेवफ्रंट B डैश A डैश बना होता, बट जब मीडियम चेंज हुआ है तो अब वेवफ्रंट एक्चुअली चेंज होकर ऐसा बन गया है। एंड देयरफॉर वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर जो हमने AC ड्रॉ किया है मस्ट बी द रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे होना चाहिए। AC should be the refracted ray, और अगर वो रिफ्रैक्टेड रे है therefore angle N dash AC must be angle of refraction, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हाइगन की थ्योरी से हमने ड्रॉ किया। बट अगर हाइगन की वेव थ्योरी करेक्ट है तो स्नेल्स लॉ जो कहता है कि हाउ आई एंड आर शुड बी रिलेटेड, इट शुड बी वेरीफाइड। इफ स्नेल्स लॉ इज वेरीफाइड इन दिस एक्सप्लेनेशन, Huygens explanation, we will assume Huygens theory is okay. So let us see how to obtain Snell's law. So verifying Snell's law using Huygens theory, in this Huygens wave theory. Let me see something in this figure first of all. This is a normal, n dash is a normal, है ना। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एंगल 90 है ना, और ये एंगल R है। अगर ये R है, ये पूरा 90 है, तो इतना एंगल 90 माइनस R है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमें, 90 माइनस R, सो ये वाला एंगल फिर से R होगी, ठीक है।
in triangle ACB dash, angle AB dash C is also equals to angle R. This can be easily verified, proved, है ना? So now once again you see, this we said is the refracted wavefront. ध्यान दीजिए, ये refracted wavefront है, ये incident wavefront था. We said angle between incident wavefront and the refracting surface is angle of incidence. Now this is refracted wavefront. Angle between refracted wavefront and the refracting surface is angle of refraction. And this is exactly same what you can see in your reflection phenomena also. And that angle between reflected wavefront and the reflecting surface is also angle of reflection. तो यहाँ ये एंगल I मिल गया मुझे, उसकी वैल्यू यहाँ पर इसके इक्वल है. ये एंगल R मिल गया तो ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल है. तो अब हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें एक में एंगल I है, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल R है, और ये दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स हैं. ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा आई थिंक. तो मैंने इसको मिटाया और अब मैं यहां पर आपके लिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीफाई करूंगा. वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव नहीं करना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो ऑलरेडी मालूम है. हमें एक्चुअली जस्टिफाई करना है हाइगन्स वेव थ्योरी को, कि हाइगन वेव थ्योरी के अनुसार क्या ये रिफ्रैक्शन के लॉज भी प्रूव हो रहे हैं कि नहीं. तो अगर ये हो रहे हैं तो हम लॉ हाइगन्स वेव थ्योरी को करेक्ट थ्योरी मानेंगे. तो देखिए हमारे पास ट्रायंगल्स हैं. इन ट्रायंगल एक ट्रायंगल हमारे पास है ए बी डैश, इसमें एक एंगल है आई. ओके, तो एंगल बी डैश इज एंगल आई. तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज साइन आई. साइन आई फाइंड आउट करते हैं, बस इतना ही करना होता है. साइन आई, ये ट्रायंगल्स ढूंढ लेना है और उसमें हमें साइन आई और साइन आर निकालना है. तो ये अगर एंगल आई है, ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब इसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर साइड हुआ. बी डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज ए बी डैश. ठीक है, इसी तरह से एक और ट्रायंगल देखिए. इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल इस बार ए सी बी डैश. इसमें आपने ढूंढ लिया है एंगल ए बी डैश, सी इज एंगल आर, है ना. इस ट्रायंगल से साइन आर निकाल लेते हैं. व्हाट इज साइन आर? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन आर. साइन आर इज, इसके सामने वाला साइड है AC अपॉन ए बी डैश. ये मिल गया मुझे. तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, क्योंकि यही तो है स्नेल्स लॉ. साइन आई अपॉन साइन आर, उसकी वैल्यू देखें कितनी आती है. हम जो कर रहे हैं वो हाइगन की वेव थ्योरी के अनुसार कर रहे हैं. लेट अस सी कि कैन वी आर वी गोइंग टू लैंड अप इनटू स्नेल्स लॉ और समथिंग एल्स. साइन आई है हमारे पास, इट इज बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी डैश, और डिवाइडेड बाय मींस मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए सी. तो ए बी डैश एंड ए बी डैश कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विद बी डैश अपॉन ए सी, राइट. एंड देयरफॉर जस्ट सी व्हाट इज लेंथ AC and what is BB dash. BB dash was C1T and AC C2T. It means it is C1 upon C2, but C1 upon C2 was mu2 upon mu1, and that is nothing but Snell's law. So that is how we are able to verify Snell's law using Huygens theory, Huygens wave theory. So like this we say Huygens wave theory was successful in explaining the phenomena of reflection as well as refraction, right? So there are many more phenomena. ये तो अभी सिर्फ reflection and refraction ही हमने किया. Let us see some examples how to use this Huygens wave theory
जैसे मैंने यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट्स को सिर्फ लेकर एक्सप्लेन किया. Let us take some other examples where sometimes wavefronts may not be plain wavefronts. You may have to draw the wavefronts if the rays of light are given. You may have to draw the rays of light if wavefronts are given. And the simple logic is, we said wavefront and a ray are always perpendicular to each other. Okay? Some illustrations to understand Huygens wave theory, some examples. Okay. There is a plane mirror. Let us start with a plane mirror. This is a plane mirror. On a plane mirror, you have learned about reflection of light in your class 10th. Let me show, here is an object, and these are some incident rays falling upon it. These are some incident rays. Now your task is draw the incident wavefronts and the refracted wavefronts. Reflected wavefronts. अभी हम इसमें रे डायग्राम तो बना सकते हैं कि जहां पर ये इंसिडेंट हुई वहां नॉर्मल ड्रॉ करके हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करते हुए रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर लेंगे. So that will be called as a ray diagram. But I want to draw here what is the incident wavefront and how the after reflection the wavefronts will be what shape of wavefronts will be there when it is reflected back. तो उसके लिए पहले हम रे डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं. देखिए यहां पर इंसिडेंट हुआ, यहां पर एक नॉर्मल बनाएंगे हम, यहां पर इंसिडेंट हुआ, यहां पर एक नॉर्मल बनाएंगे, है ना. एंड यू नो जहां ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज भी बनी होगी. यहां पर इमेज बननी चाहिए एक, यू नो आप इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस पर उसकी वर्चुअल इमेज बनती है. मतलब ये डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस भी d ही होगा ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर. ऐसे होता है. तो एक्चुअली यहां से जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो ऐसे जा रही है, और यहां से जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो ऐसे जा रही होगी. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां का है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां का है. यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका. तो ये तो हुआ इसका डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ रेज. बट हमें ड्रॉ करना था वेव फ्रंट्स. अब सोचिए ये एक पॉइंट सोर्स है. कल बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, वेव फ्रंट्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं. तो जो पॉइंट O से वेव फ्रंट ट्रैवल करेगा वो एक पॉइंट सोर्स होने की वजह से थ्री डायमेंशनल मीडियम है अगर, तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे, isn't it? तो मैं इसको सेंटर मानता हुआ डिफरेंट लेंथ्स के स्फीयर्स बनाता चलूं, डिफरेंट रेडियाई के. तो ये तो हो गया देखिए आपके इंसिडेंट वेव फ्रंट्स. दीज आर इंसिडेंट वेव फ्रंट्स, राइट. दीज आर इंसिडेंट वेव फ्रंट्स. अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स कैसे बनाएं? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये रही रिफ्लेक्टेड रेज. ऐसा लग रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रेज कहां से आ रही हैं? आई से आ रही हैं. तो पॉइंट आई को सेंटर मानते हुए स्फीयर्स बनाना शुरू करिए. लेकिन ध्यान रहे कि वो स्फीयर्स मिरर्स के नीचे नहीं होंगी, क्योंकि यहां तो कोई वेवफ्रंट है नहीं. वो स्फीयर्स जो आपको बनानी है वो सिर्फ यहां से बनानी. तो देखिए कैसे बनेगी. यहां से जाती हुई स्फीयर्स ऐसे होंगी ऐसी. These are the reflected wavefronts. Center with different radii, ये wavefronts बाहर जा रहे हैं, reflect होकर जा रहे हैं. So that is how wavefronts are getting reflected back. Incident wavefronts ऐसे आए, reflected wavefronts ऐसे ही. Let us take some more examples. एक लेंस का एग्जांपल लेते हैं. ये एक कॉन्वेक्स लेंस है मान लीजिए, ऑल्दो भी हम लेंसेज को रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे. सपोज ये पैरेलल रेज आ रही है इंफिनिटी से. I have shown only the incident
rays. You have to draw the incident wavefronts and after refraction through the lens, when the light will pass on through the lens, what will be the shape of the wavefronts. ऐसे आपसे इनकम्प्लीट फिगर्स एग्जाम्स में दे दिए जाएंगे और आपको कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा कि ड्रॉ द वेवफ्रंट्स, ड्रॉ द इंसिडेंट वेवफ्रंट्स एंड ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट्स आफ्टर द लाइट रिफ्रैक्ट्स थ्रू द लेंस. तो यहां देखने वाली बात है कि ये तो पैरेलल रेज हैं, इनके परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे बनेंगे, वो प्लेन वेवफ्रंट्स बनेंगे. तो ये आने वाली वेवफ्रंट्स हो गई, देखिए प्लेन वेवफ्रंट्स. पैरेलल रेज जहां दिखाई पड़े वो इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट्स है. अब ये रेज रिफ्रैक्ट होकर लेंस कॉन्वेक्स है अगर, तो क्या करती हैं, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज एट फोकस. ऐसे ही होता है, कन्वर्ज एट फोकस. अब बताइए यहां पर जो रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट्स बनेंगी वो कैसी बनेंगी. हाउ विल यू ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट्स. ऐसी क्या ऐसी बनेगी. मैं इसको ड्रॉ करके यहां पूछूं आपसे कि ये लेंस है, क्या ये रेज जो ऐसे जा रही हैं यहां से ऐसे आई, ये अब ऐसे हो जाएंगी, नहीं ऐसा होंगी. क्या गलती है इसमें, ये एंगल्स 90 नहीं बन रहे. तो क्या होना था एक्चुअली, इसको सेंटर मानते हुए स्फीयर्स बनाइए ऐसे. ध्यान दीजिए ये कैसी वेवफ्रंट्स आ रहे हैं, समझे. तो ये ऐसे होती चली जा रही है. सी एवरीवेयर दिस एंगल इज राइट एंगल. ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है. तो ये ध्यान रखना है कि आपको कि वेवफ्रंट और रे किसी भी पॉइंट पर जहां इंटरसेक्ट हो रही हैं वहां एंगल बिटवीन देम शुड बी 90 डिग्रीज. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. ये कॉन्वेक्स लेंस था, एक कॉनकेव लेंस वाला एग्जांपल देखते हैं. ओके, ये फोकस है. These are incident rays. Rays of light are incident such that as if they are going to coincide at focus. But in the meantime, we have put a lens in the path of the light. So what is the shape of the incident wavefront and what is the shape of the refracted wavefront? How the light will be refracted through after the light passes through the lens? Will it diverge like this? Since it is passing through the focus, it should not diverge, it should go parallel to the principal axis. First of all, this is your error. Parallel जाएंगे ना. Light passing through focus, not that focus. Here there is another focus. This focus, as if it is going to pass through the focus. After refraction, the rays will become parallel. तो ठीक है, यहां की तो पैरेलल वेवफ्रंट्स, प्लेन वेवफ्रंट्स बनेगी. बाहर जाती हुई वेवफ्रंट्स ये हो गई. These are refracted waveFronts. Refracted waveFronts. यहां पर ये refracted waveFronts थी. ये रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट्स है. व्हाट अबाउट द इंसिडेंट वेवफ्रंट्स? ऐसी नहीं, इसको सेंटर मानते हुए स्फीयर्स बनाने. लेकिन क्योंकि यहां कोई वेवफ्रंट नहीं होगी, द वेवफ्रंट्स आर लाइक दिस. इसको सेंटर मानते हुए स्फीयर्स बनाने. सो दीज आर द शेप्स ऑफ इंसिडेंट वेवफ्रंट. So you can say that ये angles सब right angles हैं. यहाँ सब angles 90 हैं. ये angle, ये सब right angles हैं.
So like this, you can be given any example, any figure, any incomplete figure. Sometimes wavefronts can be given and then you are asked to draw the rays. You may be given some incomplete ray diagrams, complete the ray diagrams and draw the wavefronts. So like this, you should be able to do it. Practice karni aani chahiye, and only logic is that wavefront and rays are perpendicular. इतनी सी बात ध्यान रखनी है. इस तरह के एग्जाम्पल्स आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स को आपको करवाया. तो हमने अभी तक दो फिनोमेना पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. एंड नाउ आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी interference of light, which actually proves the wave nature of light. Okay, next class.